Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड कुछ फर्दर एग्जांपल्स करेंगे। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 9, फाइंड इंटीग्रल a raised to the power x square into x dx where a is greater than 0 and a is not equal to 1। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम x स्क्वायर को पुट करेंगे t के इक्वल। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे देखा जा सकता है t डिपेंड कर रहा है x पे, तो दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आ जाएगा dt ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ से हमारे पास dt आ जाएगा 2x dx के इक्वल और 1 ओवर 2 dt, दिस इज इक्वल टू x dx। अब हम x स्क्वायर की जगह पुट करेंगे t को और x dx की जगह पुट करेंगे 1 ओवर 2 dt को। thus इंटेग्रल a raised to the power x square into x dx, this is equal to इंटेग्रल a raised to the power t into 1 over 2 dt, this is equal to 1 over 2 into a raised to the power t dt। We know that integral a raised to the power x dx, this is equal to 1 over natural log of a into a raised to the power x plus c। तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 over 2 a raised to the power t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होगी 1 over natural log of a into a raised to the power t, then आ जाएगा plus c। This is equal to 1 over 2 into a raised to the power t over natural log of a plus c, as t is equal to x square। तो अब यहाँ पे t की जगह हमने पुट कर देना है x स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into a raised to the power x square over natural log of a plus c। Hence, integral a raised to the power x square into x dx, this is equal to a raised to the power x square over 2 into natural log of a plus c। So this is the final and required result. Next example number 10, evaluate part 1 is integral 1 over square root of a square minus x square dx where x is greater than minus a and x is less than a and also a is positive। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हम x को अज्यूम करेंगे a इंटू साइन थीटा के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, that is x is equal to a into sine theta for minus pi over 2 is less than theta and theta is less than pi over 2। अब यहाँ पे हमारे पास dx ओवर d थीटा आ जाएगा a इंटू cos थीटा के इक्वल। सो dx is equal to a इंटू cos थीटा d थीटा। अब हम dx की जगह पुट कर देंगे a इंटू कॉस थीटा d थीटा और x की जगह पे आ जाएगा a इंटू साइन थीटा। thus इंटेग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल a into cos theta
d theta over square root of a square minus a square into sine square theta. This is equal to integral a into cos theta over square root of a square into 1 minus sine square theta d theta. This is equal to integral a into cos theta over a into square root of 1 minus sine square theta d theta. अब यहाँ पे a के साथ हो जाएगा कैंसल. Also we know that cos square theta, this is equal to 1 minus sine square theta, which means cos theta would be equal to square root of 1 minus sine square theta. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा cos थीटा. सो दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल cos थीटा ओवर cos थीटा d थीटा. cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 d थीटा. अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगी थीटा के इक्वल और साथ आ जाएगा प्लस c. अब हमने x को अज्यूम किया है a इंटू साइन थीटा के इक्वल, तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा x ओवर a के इक्वल. तो यहाँ से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a. तो अब यहाँ पे थीटा की जगह हमने पुट कर देना है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a. तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c. Hence integral 1 over square root of a square minus x square dx, this is equal to sine inverse of x over a plus c. यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट हमने अभी फाइंड किया है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है और इसको हम एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, इंटेग्रल 1 over x into square root of x square minus a square dx where x is greater than a और x is less than minus a. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हमने x को पुट करना है a इंटू सीकेंट थीटा के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू a इंटू सीकेंट थीटा. That is x is equal to a into secant theta for theta is greater than 0 and theta is less than pi over 2 or pi over 2 is less than theta and theta is less than pi. अब हमारे पास यहाँ पे dx ओवर d थीटा आ जाएगा a इंटू सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा. सो dx इज इक्वल टू a इंटू सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा d थीटा. thus इंटेग्रल dx ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dx की जगह आ जाएगा a इंटू सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा इंटेग्रल a इंटू सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा ओवर और x की जगह पे आ जाएगा a इंटू सीकेंट थीटा. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a इंटू सीकेंट थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a square into secant square theta minus a square. This is equal to integral a into secant theta into tan theta d theta over a into secant theta into square root of a square into secant
स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और सीकेंट थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल tan थीटा ओवर ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। We know that tan square theta this is equal to secant square theta minus 1। तो हमारे पास अब tan theta आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे अब हम स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पुट कर देंगे tan थीटा। सो दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल tan थीटा ओवर a इंटू tan थीटा डी थीटा। tan थीटा कैंसिल हो जाएगा tan थीटा के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू इंटेग्रल 1 डी थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगी थीटा के इक्वल, देन आ जाएगा प्लस c। सिंस x इज इक्वल टू a इंटू सीकेंट थीटा, तो हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा x ओवर a के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह हम पुट कर देंगे सीकेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a इंटू सीकेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c। Hence, integral 1 over x into square root of x square minus a square dx. This is equal to 1 over a into secant inverse of x over a plus c. So this is the final result. Next हम कुछ useful substitutions को डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा हो, देन हम x को पुट करते हैं a इंटू साइन थीटा के इक्वल। एग्जाम्पल नंबर का जो पार्ट 1 हमने किया था उसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा था, तो वहाँ पे हमने x को a इंटू साइन थीटा के इक्वल पुट किया था। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा हो, देन x को पुट किया जाता है a इंटू सीकेंट थीटा के इक्वल। अगर एक्सप्रेशन में आ रहा हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन हमारे पास x होता है a इंटू टैन थीटा के इक्वल। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a। देन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a को पुट करना है t के इक्वल और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a को t के इक्वल पुट किया जा सकता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा हो, देन x माइनस a को a इंटू साइन थीटा के इक्वल पुट किया जाता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में आ रहा हो स्क्वायर रूट ऑफ 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, देन x प्लस a को पुट करना है a इंटू सीकेंट थीटा के इक्वल। तो ये थी कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है evaluate integral 1 over square root of a square plus x square dx where a is greater than 0। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो इंटेग्रल है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब हम x को पुट करेंगे a इंटू टैन थीटा के इक्वल। लेट x is equal to a into tan theta for minus pi by 2 is less than theta and theta is less than pi by 2.
then dx over d theta, this is equal to a into secant square theta. This implies that dx is equal to a into secant square theta d theta. Thus integral 1 over square root of a square plus x square dx, this is equal to integral 1 over square root of a square plus a square tan square थीटा, और dx की जगह आ जाएगा a इंटू secant square थीटा d थीटा. This is equal to integral a into secant square theta over square root of a square into 1 plus tan square theta d theta. This is equal to integral a into secant square theta over a into square root of 1 plus tan square theta d theta. a के साथ कैंसिल हो जाएगा. Also square root of 1 plus tan square theta, this is equal to secant theta. तो हमारे पास आ जाएगा secant square theta over secant theta d theta. secant theta के साथ कैंसिल हो जाएगा. So this is equal to integral secant theta d theta. This is equal to integral, अब हम secant थीटा को secant थीटा प्लस tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा secant थीटा इंटू secant थीटा प्लस tan थीटा ओवर secant थीटा प्लस tan थीटा d थीटा. This is equal to integral secant square theta plus secant theta tan theta over secant theta plus tan theta d theta. अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस C1, और यहाँ पे ये जो C1 है ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. अब हमने x को ज्यूम किया हुआ है a इंटू tan थीटा के इक्वल, तो हमारे पास tan थीटा आ जाएगा x ओवर a के इक्वल. अब हमें रिक्वायर्ड है secant थीटा. सो we know that secant square theta, this is equal to 1 plus tan square theta, this is equal to 1 plus x square over a square, and this is equal to a square plus x square over a square. तो हमारे पास अब secant theta आ जाएगा square root of a square plus x square over a के इक्वल. For theta is greater than minus pi by 2 and theta is less than pi by 2. अब हम secant थीटा की जगह पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर a, और tan थीटा की जगह पुट कर देंगे x ओवर a. तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर a प्लस x ओवर a प्लस C1. This is equal to natural log of square root of a square plus x square plus x over a plus C1. Now we know that log of m over n, this is equal to log of m minus log of n. तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस C1.
अब हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c1 एक कांस्टेंट होगा, सिंस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c1 ये कांस्टेंट है तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं c के इक्वल, और c भी एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे हम मॉडुलस साइन इसलिए यूज नहीं कर रहे बिकॉज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। So this is the final and required result. Next है हमारे पास example number 2. Evaluate integral dx over square root of 2x plus x square where x is greater than 0. तो अब इसका करते हैं solution. हमारे पास है integral dx over square root of 2x plus x square. This is equal to इंटेग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1 -1। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, देन आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर -1, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में है। और यहाँ पे हमारे पास x की जगह है x प्लस 1 और a की जगह है 1। तो अब हम x प्लस 1 को सीकेंट थीटा के इक्वल अज्यूम करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा dx दिस इज इक्वल टू सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। और यहाँ पे ये जो थीटा है दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई ओवर 2। दस इंटेग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x plus 1 whole square minus 1, this is equal to integral secant theta tan theta d theta over square root of secant square theta minus 1. This is equal to secant theta tan theta d theta over square root of secant square theta minus 1 is equal to tan theta। tan theta के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल secant थीटा डी थीटा। secant थीटा की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है नेचुरल लॉग ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब हमारे पास सीकेंट थीटा है x प्लस 1 के इक्वल, हमें रिक्वायर्ड है tan थीटा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। हेंस इंटेग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x plus 1 plus square root of 2x plus x square plus c. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है और हमने इसके अलावा कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस को भी डिस्कस किया है
नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।